Hello everyone. Now today we are going to do the idea of algorithm complexity in class 12th. It is in our syllabus. So why we are going to do this idea of algorithm complexity? Whenever you are asked to design a program, there are many methods to design a program. Suppose if I ask you that print natural numbers from 1 to 1000. Some students will use for loop, some will use while loop. So there are many different methods to design a program. Now, why we are going through this chapter is that when the inputs are too large, suppose huge amount of inputs are there, at that time the processing time depends on the number of inputs. Suppose you are given a task to calculate the total in the world, how many male and how many female are there. Now different methods you will apply. So some program will take 5 days, some program will take 1 month to execute. So it depends on the program that how much time it will take. Second thing is the space. That is, in your computer, if less space is there and if your task is taking more space, then it will get hanged and it will not be executed. So this time and space is very important when you apply in real life. जब हम रियल लाइफ में कुछ भी काम करते हैं, तो अभी तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, एक फॉर लूप लगा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 0.00001 सेकेंड ले रहा है, हमको पता भी नहीं चल रहा। जब एक फॉर लूप के अंदर दो फॉर लूप लगाएंगे, वो भी सेकेंड्स में काम करेगा, हमको पता नहीं चलेगा। जब एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप के अंदर थर्ड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप इफ यू आर यूजिंग, at that time it takes some days to execute. Then again, if you so this power of n, it goes on increasing and the time also increases. तो जैसे ही काम तुम्हारा, the task, whatever task you are doing, the task is taking many for nested for loops, so n cube, n to the power 4, so that much time it will take. तो कुछ कुछ काम को वो प्रोसेसिंग करने में उसको महीनों लग जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि सिस्टम की कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी, स्पेस होनी चाहिए उतनी। तो हम प्रोग्रामिंग इस मेथड से करेंगे, जैसे बोला जाता है नॉर्मली कि वाइल यूज़ करो, वाइल कम टाइम लेता है फॉर से। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर बच्चों को बोलते हैं कि अगर वो प्रोग्राम वाइल से हो सकता है तो वाइल से करो। तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे। द टॉपिक इज आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ देयर आर सम केसेस, जैसे बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या होता है, मैंने तुमको बोला जाओ जाके पूरे स्कूल में 2000 5000 बच्चे हैं, तुम उसमें क्लास 12 अंकिता को ढूंढ कर लो। अब तुम बाहर निकले, सामने ही अंकिता मिल गई, क्लियर। तो अंकिता को ढूंढने में तुमको कुछ सेकंड्स लगे। लेकिन अगर तुम पूरे स्कूल में ढूंढते रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तुमको अंकिता नहीं मिल रही, that is the worst case. So best case is, suppose you are searching an element and the first element is that element and you are using linear search, एक एक करके ढूंढ रहे हो, ठीक है, और पहला एलिमेंट तुमको मिल गया, तो वो बेस्ट केस हो गया, टाइम ही नहीं लगा। और अगर लास्ट एलिमेंट है या फिर ढूंढ के मिला ही नहीं, है ही नहीं वो एलिमेंट, और लाखों करोड़ों एलिमेंट्स, तो वो वर्स्ट केस हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेस्ट केस, वर्स्ट केस, ये सब देखते हैं। सो व्हाट इज कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी? Complexity refers to the measure of the efficiency of an algorithm. Complexity of the algorithm is determined by measuring the internal factors affecting the algorithm. Internal factors भी affect करते हैं, जैसे कि time और space। Now factors affecting efficiency. Efficiency कैसे affect होता है? Performance of the algorithm depends on mainly two factors. कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो दो फैक्टर पे, इंटरनल में टाइम एंड स्पेस, एक्सटर्नल में स्पीड ऑफ कंप्यूटर, क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। Time complexity. It is the number of elementary instructions that the program executes. Number depends on the size of the input data. The time complexity of algorithm is most commonly expressed using the big O notation.
तो हम लोग के सिलेबस में खाली बिगो नोटेशन है, बाकी भी बहुत सारे नोटेशंस होते हैं, तो हम लोग खाली बिगो नोटेशन को अभी करेंगे। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम देखेंगे। Now, the other notations are the mathematical tools to represent time complexity of algorithm. Three asymptotic notations are mostly used to represent time complexity of algorithms. Theta notation to denote tight bound, best case, big O notation to denote upper bound, worst case, and omega notation to denote lower bound, average case. Next, big O notation. So this is in our syllabus. We will go in details. It is used to denote algorithm's growth rate. The growth rate determines the algorithm performance when its input size grows. This is very important. अभी हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं, दो इनपुट दे रहे हैं, जब इंक्रीज करेंगे 100, 1000, lakhs, 10 lakhs, तब हमारा प्रोग्राम कैसे रन होगा। If we have two algorithms for solving a problem, one has complexity O(n) square and other has O(2 to the power n, compare the time required to solve the problem for different size. अब यहाँ पे size दिया गया है कि इतने number of inputs increase होने पे जो program है हमारा, एक suppose nested for है और एक n square है, एक 2 to the power n है। अब इसमें जब 10 inputs हो रहे हैं तब टाइम कितना लग रहा है और 2 टू द पावर n में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बेस्ट केस कौन सा हुआ, n स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये टाइम टेकन है, कितना टाइम इसमें लग रहा है एज पर द नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स में। नेक्स्ट इज फैक्टर्स। यस, नाउ दिस इज ओवर. Now next is, as the number of steps increases, more is the time taken and the performance is lesser. जितना स्टेप्स बढ़ते जाएगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा और परफॉर्मेंस उतनी खराब होती जाएगी। परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल क्लॉक टाइम. परफॉर्मेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसका परफॉर्मेंस पुअर है, और जिस भी काम में कम टाइम लगता है उसका परफॉर्मेंस बेस्ट है. Next, dominant term. It is the term that affect most of the performance of the algorithm. Suppose if an algorithm depending on the value of n has performance an square plus bn plus c for constant abc, the maximum impact on the algorithm's performance will be the term an square. So the complexity is on square. Suppose एक प्रोग्राम में बहुत सारे फॉर लूप है, वाइल है, बहुत सारे इफ है, अब उसमें कॉन्स्टेंट्स भी है, अब उसमें बहुत सारे n है, बहुत सारे n स्क्वायर है, तो जो डिपेंड करेगा एल्गोरिदम किस पे डिपेंड करेगा, जिसमें मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा। तो इस केस में अगर ए एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर मतलब एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर या नेस्टेड, बी एन मतलब एक फॉर लूप है अलग से, तो इस केस में जो है मैक्सिमम इम्पैक्ट कौन डाल रहा है, ए एन स्क्वायर डाल रहा है, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ एन स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एजम्पशन, ऑल स्टेप्स टेक प्रिसाइसली सेम टाइम टू एग्जीक्यूट. नॉर्मली हर एक स्टेप, जैसे x टू द पावर x इक्वल्स टू 1 हमने दिया है, या x इक्वल्स टू x प्लस एन फॉर्मूला कुछ दिया है, तो प्रिसाइसली सेम टाइम देता है. रनिंग टाइम ऑफ लूप इज इक्वल टू द रनिंग टाइम ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द लूप including tests multiplied by the number of iteration. Clear? Now for I is n, इसमें दिया हुआ है टोटल टाइम जो है m इक्वल्स टू m प्लस 2 एक कांस्टेंट है, और फॉर लूप कितने बार चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, तो ये टोटल टाइम इसका अगर निकालेंगे तो कांस्टेंट जो जितना भी टाइम, ये अगर 1 सेकेंड ले रहा है और n टाइम्स चल रहा है तो n इंटू 1 सेकेंड, तो c एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं, ये कांस्टेंट c टाइम ले रहा है और n टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, तो c इंटू n सी एन हो जाएगा. ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ एन. नेक्स्ट, नेस्टेड लूप.
टोटल रनिंग टाइम इज द प्रोडक्ट ऑफ द साइज ऑफ ऑल द लूप्स। ठीक है, जब हम एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लिखते हैं और क्वेश्चन में आता है हाउ मेनी टाइम्स दिस इनर फॉर लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड, तो हम क्या करते हैं, आउटर कितनी बार चल रहा है n टाइम्स, इनर कितनी बार चल रहा है n टाइम्स, टोटल टाइम कितना हो जाएगा n इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट है ये सी कांस्टेंट एक सी टाइम ले रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो जा रहा है सी इंटू एन स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया ओ एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट, एक अलग से फॉर लूप है और एक नेस्टेड है, दोनों एक एक है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो अलग से कांस्टेंट जैसे सी फर्स्ट लाइन x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, एक कांस्टेंट सी जीरो टाइम ले रहा है, प्लस m इक्वल्स टू एम प्लस टू सी वन टाइम ले रहा है और ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इंटू एन, प्लस ये एन स्क्वायर, दो फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है तो एन स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टाइम सी टू ले रहा है, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा वो ओ एन स्क्वायर हो जाएगा। Next, if then else, time taken by the test plus time taken by either the then part and the else part, तो इसमें खाली constants है, तो if में क्या होता है कि ये just एक ही बार चेक होता है तो ये खाली constant आ जाता है, तो इसमें खाली C0 प्लस C1 प्लस यहाँ पे एक फॉर लूप है तो ये n टाइम्स हो जाएगा, तो इसमें if जो है चेक करने के लिए C2 टाइम लगा रहा है और रिटर्न जो है ये C3 टाइम लगा रहा है, तो दोनों को प्लस करने के बाद इनटू फॉर लूप जो है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका ओ एन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपेयरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कैसे कंपेयर करेंगे, डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। अभी यहाँ पे प्राइम का प्रोग्राम है तो क्या होगा, ये कांस्टेंट टाइम लेगा, ये कांस्टेंट, ये C0 ये C1, अब फॉर लूप के जो स्टेप्स है ये n टाइम्स रिपीट होंगे, तो सपोज ये C2 है ये C3 है तो इसको प्लस करके C2 प्लस C3 इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे, फर्स्ट लाइन C0 टाइम ले रहा है, सेकेंड लाइन C1 टाइम ले रहा है, ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे C2 टाइम ले रहा है C3, तो C2 प्लस C3 इंटू एन हो जाएगा, ये C4 हो जा रहा है, ये C5 ये C6, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने जब दिया जाएगा तो जो कॉन्स्टेंट्स है उसको हम ऐसे लिखेंगे, बस मेन हमारा ये C2 प्लस C3 इंटू एन, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाएगा। नेक्स्ट इज वाइल, now while is little bit different in this, normally it takes under root of n, while में ज़्यादातर हम यहाँ पे अंडर रूट ऑफ n टाइम्स होता है और इंटरनली जो फंक्शनिंग होता है वो तुम्हारा सेम कांस्टेंट जितना जितने कांस्टेंट्स हैं उसको प्लस करके हम इंटू अंडर रूट ऑफ n, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या हो जाएगा o अंडर रूट ऑफ n। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस मतलब बिग ओ नोटेशन होता है वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस जब पूछा जाता है हम क्या करते हैं, सेम जो बिग ओ नोटेशन का है, एक फॉर लूप है ये n टाइम्स चलेगा, ये C0 ये C1 टाइम्स है तो C0 प्लस C1 इंटू एन हो गया, और ये C2 और C3 टाइम्स है तो ये C2 प्लस C3 इंटू एम हो गया, m टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस m टाइम्स हो जा रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा n प्लस m, क्योंकि ये n टाइम चल रहा है ये m टाइम चल रहा है तो n प्लस m हो जाएगा जब दो फॉर लूप। सेम यहाँ पे एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है तो ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये n टाइम्स हो जाएगा, तो इसमें डोमिनेंट ये है तो हम n स्क्वायर लिखेंगे, ओ एन स्क्वायर लिखेंगे। Clear? So these are the questions. Now in exam normally the theory portion is also asked as well as to calculate the complexity. So here if all are constants then O1 we are writing. If only one for loop is there then we will write yes. Now here you can see O1 means it is a constant. Suppose only the question is sum of two numbers. Now I am not using any for anything, so it is O1.
or 1 times. ठीक है. Now if it is using if, then also it will be O1. Then using for, like natural numbers, series of even numbers, using one for loop, it will be On. If it is a pattern or a series of prime numbers where two for loop is there, then it will be On square. So these are the different calculations. Now here many examples are there. So why we are learning this chapter? Because whenever we are, till now we were using lesser number of inputs, but when we will use huge amount of inputs, then our processing time will increase, as well as the space in our computer, that is also a criteria here. So we have to keep in mind, and we have to design the software in such a way that it takes lesser time and it takes less space. So this is over. Now go through the portion. If you have any doubt, you can write your doubts in the text box or chat box. So thank you. Have a nice day.